We discussed the importance of taking into account the Make in India approach and lessons drawn from recent conflicts while going forward in the defense domain. On the economic front, we spoke about the value of concluding at an early date the final text of the interim agreement regarding reciprocal and mutually beneficial trade. This will be an important step towards a comprehensive bilateral trade agreement which was envisaged during Prime Minister Modi's visit in February 2025. Our expectation is, we had a team recently in Washington, and our expectation is that an American team would be visiting India soon for that purpose. भारत और अमेरिका के रिश्तों में नई मजबूती की तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर कई बड़े मुद्दों पर बात की। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद से लेकर वीजा, मेक इन इंडिया, रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। जयशंकर ने बातचीत की शुरुआत में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी साझा राष्ट्रीय हितों और कई क्षेत्रों में समान सोच पर आधारित। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच हाल के समय में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर लगातार बातचीत होती रही, जिसमें पश्चिम एशिया, भारत उपमहाद्वीप, पूर्वी एशिया और यूक्रेन संघर्ष जैसे विषय शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बैठक के बाद दोनों नेता लंच पर आगे की बातचीत जारी रखेंगे। In terms of the political understanding between India and the United States, I think we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. Yesterday, during the Secretary's call on the Prime Minister, some global and regional issues were discussed, and in our subsequent meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia. I also shared with him some impressions I had of my recent visit to the Caribbean. And our talks today over lunch will focus on the latest developments in the Gulf. As you all know, few things have happened or seem to be happening overnight, and also on the Ukraine conflict. सबसे अहम मुद्दा आतंकवाद का रहा, जहां विदेश मंत्री जयशंकर ने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि भारत की आतंकवाद पर नीति जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं और इस खतरे के खिलाफ मिलकर काम करना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। जयशंकर ने विशेष रूप से पिछले साल अमेरिका से 26/11 मुंबई हमले के एक प्रमुख साजिशकर्ता के भारत प्रत्यर्पण का जिक्र करते हुए अमेरिकी सहयोग की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को और मजबूत करेंगे। India and the United States have common interests, but they also face shared challenges. Prominent among them is terrorism. Our position in that regard is very clear. It is one of zero tolerance. We appreciate the strong cooperation between concerned agencies of our two countries in this domain. I particularly recognized the extradition from the United States to India last year of a key planner of the 26/11 Mumbai attacks. Our two countries will intensify cooperation bilaterally as also in relevant international forums. We will continue to collaborate closely on countering illegal trade in narcotics. वीजा का मुद्दा भी जयशंकर ने सीधे तौर पर उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय यात्रियों और पेशेवरों को अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे हल करने की जरूरत है ताकि लोगों के बीच संपर्क और आसान हो सके। इस दौरान रक्षा और सहयोग पर विदेश मंत्री ने बताया कि भारत और अमेरिका ने अपने 10 साल के प्रमुख रक्षा साझेदारी ढांचे को फिर से मजबूत किया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस से जुड़ा एक नया रोड मैप भी तैयार किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते समय भारत के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण और हाल के वैश्विक संघर्षों से मिले सबकों को ध्यान में रखना जरूरी। We discussed the importance of taking into account the Make in India approach and lessons drawn from recent conflicts
while going forward in the defense domain. On the economic front, we spoke about the value of concluding at an early date the final text of the interim agreement regarding reciprocal and mutually beneficial trade. This will be an important step towards a comprehensive bilateral trade agreement which was envisaged during Prime Minister Modi's visit in February 2025. Our expectation is, we had a team recently in Washington, and our expectation is that an American team would be visiting India soon for that purpose. आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश जल्द ही पारस्परिक और लाभकारी व्यापार समझौते के अंतरिम टेक्स्ट को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दिशा में हाल ही में भारतीय टीम अमेरिका गई थी और अब अमेरिकी टीम के भारत आने की उम्मीद है। ऊर्जा और वैश्विक व्यापार पर बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों का साझा हित सुरक्षित और निर्बाध समुद्री व्यापार में है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में ऊर्जा की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए और ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता बढ़नी चाहिए, क्योंकि यही आधुनिक अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। कुल मिलाकर विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बातचीत में भारत का रुख बेहद साफ तरीके से सामने रखा और अमेरिका के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सभी बड़े मुद्दों पर भारत की प्राथमिकताएं रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।